In 1985 was my first time when I attended IFFI International Film Festival, and the film was Saransh. My tragedy was that I was 28-year-old and I was playing a 65-year-old man, and nobody on IFFI was recognizing me. और मैं हर की जाके थोड़ी देर रुक जाता था और पूछता था कि मुझे देखें और मुझे पहचानें. 37 years later, with 532 films I have done, and it's a great moment for me to be here again at IFFI Goa, which has become an iconic festival. My journey has been phenomenal, all ups and downs, but what I believe in is that never give up. And that's what the theme of Kashmir File is also, in a way, that never give up, because hope is always around the corner. It's based on true incidents, true story. Vivek Agnihotri interviewed 500 people all over the world, Kashmiri families. And on the 19th of January 1990, when 500,000 people, 500,000 people had to leave their homes one night, including some of my relatives, and go and live in refugee camps, in tents, in areas where they were used to Kashmir weather. And then, so I as a Kashmiri Pandit and Kashmiri Hindu has lived with the tragedy, because one was the tragedy that had happened, and the other thing was nobody was recognizing the tragedy. The world was trying to hide this tragedy. ये हुआ ही नहीं है. या जी 15-20 लोग निकले होंगे, या 200 लोग निकले होंगे, 300 लोग निकलेंगे, 500,000, 500,000, 5 लाख लोग अपने घरों से, जो भी एक मेरे जैसे खुद के मामा हैं, एक फिएट कार में उनका जो भी सामान वो डाल सकते थे, एक बड़े से घर में इंसान जो है वो घर से बर्तन निकाल सकता है, सोफा निकाल सकता है, बेड निकाल सकता है, किताबें निकाल सकता है, लेकिन यादें कैसे निकाल सकता है? यादें, खुशबू, वो नज़ारे जो देखता था. और हर 19 जनवरी को हर साल के हम ट्विटर पे ट्रेंड करते थे कि कश्मीरी पंडित एक्सोडस डे है आज. मगर पॉलिटिशियंस, पत्रकार, कभी किसी ने इस पर रिसर्च नहीं किया कि क्या ये एक्चुअली ट्रेजेडी हुई. 32 साल बाद लोगों तक पहुंची ये त्रासदी. As an actor, for me, this is not a film. This was an emotion which I was portraying in every film. I have never been so mentally tormented doing a role in a film. क्योंकि ये मेरे कंधे पर ये जिम्मेदारी थी कि वो जो अपने घरों से उस रात को निकाल दिए गए थे, मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो मेरे आंसू और मेरे तकलीफ, मेरी चीत्कार जो है, that is real, that was truthful. This is one film I have not used the craft of an actor. I would like to say that I have used my soul to portray the truth that is behind it. This year, on a personal note, Manish ji, or Anupam, on a personal note, has been the greatest year of my life. मैं छोटे से शहर का, I'm from Simla. My father was a clerk in the forest department. I came to the city of Mumbai on 3rd of June 1981 with 37 rupees in my pocket. This is a very dignified, bald look. But when you initially lose hair, इनको पता होगा भाई साहब को, तो थोड़े यहाँ से जाते हैं, थोड़े यहाँ से जाते हैं, बड़ा तकलीफ दे होता है. और उसमें मैं वहाँ जाके बॉम्बे में हीरो बनना या एक्टर बनना चाहता था. तो लोग मुझे कहते थे कि आप असिस्टेंट बन जाओ, स्टोरी राइटर बन जाओ, एक्टर तो नहीं बन सकते क्योंकि आपके पास बाल नहीं है. मैंने कहा मगर मेरे पास नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से गोल्ड मेडल की डिग्री है. 350 करोड़ कश्मीर फाइल्स, 130 करोड़ की कार्तिकेय 2, और ऊंचाई तो भी शुरुआत हुई है. जिस दिन ऊंचाई ने पिछले 3 दिन पहले 20 करोड़ किए, तो मैं 500 करोड़ का एक्टर बन गया. उसमें से मुझे पैसे तो नहीं मिले हैं, लेकिन जो इज्जत मिली है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा है. मेरी तीनों फिल्मों में, कश्मीर फाइल में कोई गाना नहीं, कोई ट्रेजेडी नहीं, कोई मतलब कोई कॉमेडी नहीं, कोई कुछ नहीं. अमेजिंग. ऊंचाई इज अबाउट 3 old people wanting to find their courage and go to Mount Everest base camp. Kartikeya 2 is in search of truth. So they have broken the whole system of what the Hindi film industry or Indian film industry talked about. So that is why on this year it's a triumph of cinema. ये जिंदगी ने मुझे सिखाया, खासकर मेरे पिताजी ने, कि जब आदमी नया नया काम करता है तो उसको बहुत ज़रूरी होता है बढ़ावा देना. ये फिल्म ऊंचाई इसी बारे में.
इसी बारे में है कि हमको 60 साल की उम्र के बाद लोग ना जो है वो फिल्मों में भी ऐसा होता है। मैंने सबको सख्त हिदायतें दी हैं, आप लोगों के लिए भी है, दिस इज फॉर यू। प्लीज डोंट ऐड एडजेक्टिव्स लाइक लेजेंडरी अनुपम खेर, veteran Anupam Kher, because that is way of telling me that now you are about to retire, we will give you lifetime achievement award and then you will walk into the sunset. मेरा भी अगले 30 साल तक ऐसा कोई करने का इरादा नहीं। You should write newcomer 2.0 का अनुपम खेर। हिंदुस्तान के हर इलाकों से मुंबई में लाखों लोग आते हैं काम ढूंढने फिल्मों में, उनमें से 0.001% को काम मिलता है। सर मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं उनमें से 1% हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं आज अपनी 532वीं फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। और आई एम प्राउड ऑफ ऑल द फिल्म दैट आई हैव डन, चाहे वो बकवास फिल्में थी, चाहे वो अच्छी फिल्में थी, चाहे बुरी फिल्में थी, बिकॉज दे वर ऑल पार्ट ऑफ माई जर्नी। सक्सेस इज अबाउट जर्नी, नॉट अबाउट डेस्टिनेशन। और मेरा कंपटीशन अपने आप से रहता है और मेरी अपने आप से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे हार्ड वर्क और ऑनेस्टी से जो भी कुछ करो उसमें कामयाबी ही मिलेगी। ये अभी मेरी लाइफ का इंटरवल हुआ है। इंटरवल की बात की कहानी तो और भी अच्छी होने वाली है। मेरे से बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हॉलिडे पे कहाँ जाते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि इन 35 years, 38 years, my friends on the dais, I have never taken a holiday. If you enjoy what you do, then you don't need holidays. I have always wanted to be an actor. I was never good at studies and never got more than 38% marks. But I used to dream. In a small town there is plenty of time to dream. बॉम्बे में जब आया तो बहुत साल का 3 साल काम नहीं मिला और उसमें से 1 साल बहुत ही खतरनाक था। 1 साल वो था जिसमें when I spent my 27 days on a railway platform, I was homeless, I was sleeping. तो मैंने उन दिनों चिट्ठियां लिखने का एक बहुत चलता था रिवाज, तो अपने दादाजी को मैं चिट्ठी लिखता था। तो when I was sleeping on the railway platforms, I wrote to my grandfather. I said, क्या ये जीवन है? This is such an undignified life. I'm an educated actor. I'm a gold medalist, and I'm staying on a railway platform because I have no place to stay. यहाँ 1:40 पर मुझे सोने को मिलता है because लास्ट ट्रेन निकलती है। सुबह 4:50 पर मुझे उठना पड़ता है because फर्स्ट ट्रेन शुरू होती है। तो उन्होंने खत में जो जवाब लिखा उसमें एक लाइन कमाल की थी। उन्होंने लिखा कि बेटा तूने बहुत मेहनत की है, तूने नेशनल ड्रामा स्कूल से पास किया है, तेरे माँ बाप ने बहुत सारी अपने बर्तन घड़ियां बेच के तेरे को पढ़ाया है, तू 1.5 साल रुक चुका है, और एक बात याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता। उस लाइन ने मुझे बिल्कुल आजाद कर दिया। एंड एट ए वेरी यंग एज माय फादर टॉट मी दैट फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। हम अपनी जिंदगी को खुद ही ट्रेजिक बनाते हैं। हम तकलीफें ज्यादा सोचते हैं, खुशियां कम सोचते हैं। मेरे दादाजी कहा करते थे कि हैप्पीनेस एंड सैडनेस इज इन योर हैंड्स। You can feel very sad by thinking how many people are better than you, but you can feel very happy by thinking how many people are worse than you. हम बहुत गरीब थे। हम 14 लोग एक छोटे से घर में रहते थे, इतना सा कमरा था। 14 लोग थे, दादा दादी, ताया जी, पोता पत्ते, बच्चे बच्चे, और मेरे फादर क्लर्क थे, उनकी तनख्वाह 90 रुपए थी, और हम सब बड़े खुश थे। तो मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम इतने गरीब हैं, हम इतने खुश कैसे हैं? तो उन्होंने कहा बेटा जब इंसान सब बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। बट आई डोंट कैरी द बर्डन ऑफ अनुपम खेर ऑन माई शोल्डर्स। आई एम नॉट इम्प्रेस्ड विद अनुपम खेर, दैट इज व्हाई। सो व्हेन आई डोंट कैरी दैट बर्डन आई कैन फ्लाई ऑल द टाइम एंड आई कैन बी हैप्पी। कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग करते हैं। आई एम अ डूअर, आई एम नॉट द पर्सन हु स्पीक्स। सो कुछ लोगों को लगता है कि क्रिटिसिज्म करके वो काम कर रहे हैं, हमारे देश में खासकर बहुत सारे कि क्रिटिसाइज, मैंने क्या किया, मैंने तो बोल दिया, क्रिटिसाइज कर दिया, पर वो काम थोड़ा है। काम इज दैट यू हैव टू शो वर्क इफ यू वांट टू से समथिंग लाइक दैट। बाकी ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है, फ्रॉम महात्मा गांधी टू एनीबडी, हु हैज नॉट बीन क्रिटिसाइज्ड, बिकॉज इट्स अ फुल टाइम जॉब ना, कि ढूंढे खासकर। पता ही है, ऐसा कोई बता दिया, हम तो भगवान को क्रिटिसाइज करते हैं, कोई बात नहीं। वी आर सेलिब्रेटिंग द इफी हियर and we are happy, but people will keep on talking about it. Negative gets more attracted, that's why people become negative. I still have that sense of wonder, which I think everybody should have the sense of wonder in life. जब मैं दिलीप साहब के साथ काम किया था, तो मैं उसमें खलनायक था, डॉक्टर डैंग का रोल था मेरा। तो मैं जब वो गाड़ी से उतरे
और अपनी मर्सिडीज से और उतरे और आए, तो मैंने उनकी पिक्चर जब गोपी लगी थी तो मैंने स्कूल से भाग के देखी थी। मेरा नाक भी टूट गया था, बिकॉज हमारे शिमला में जब तक खिड़की नहीं खुलती थी तब तक लाइन लगती थी, जैसे ही खिड़की खुलती थी लाइन टूट जाती थी। तो मैंने देखा ये आ रहे हैं, इनके बाल ऐसे हैं, इनके हाथ ऐसे हैं, मैं आई वाज लुकिंग एट विद एडमिरेशन। तो सुभाष घई साहब आए और मुझे अलग ले जाके बोले, तू मुझे मरवाएगा, तू इस फिल्म का विलन है, इनको ऐसे क्यों देख रहा है प्यार से। तो मैंने उनसे कहा कि अनुपम खेर दिलीप साहब को ऐसे देख रहा है, डॉक्टर डैंग राणा विश्व प्रताप सिंह को ऐसे नहीं देखेगा। When I see his film or when I see his film or when I see films overall, I admire their film. अपने आप से कैसे झूठ बोल सकता है? People who pretend don't like themselves. I like myself. मेरा करेज उन लोगों के सामने बिल्कुल नहीं था। देखिए, मैं तो फिर भी शूटिंग के बाद रो के, बिलख के, तकलीफ से मैं अपने होटल के कमरे में जाता था और गर्म सूप ऑर्डर करता था, गर्म पानी से नहाता था। मगर जिन लोगों के साथ असली में वो ट्रेजेडी हुई, वो उनके लिए कोई सूप नहीं था, कोई नहाना था। वो टेंटों में रहते थे, उनको बिच्छू काटते थे, और उनको जब मैं उनके बारे में सोचता था तो मुझे मेरा करेज उनके सामने बौना लगता था। When you show courage, it also straightens the spine of a lot of people. तो मुझे निकाल दिया था। 1 जनवरी 1984 को फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली थी और 20 दिसंबर, और मैंने 6 महीने रिहर्सल की थी, धोती कुर्ता पहन के बुढ़ों को देखने जाता था शिवाजी पार्क। 28 साल का 27 साल का लड़का था जब शूटिंग शुरू। और 20 दिसंबर 1983 को मेरा एक दोस्त, मेरा रूममेट, वो आया और बोला कि कल मैं राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में गया था और मैंने एक अफवाह सुनी है कि तू मेन रोल नहीं कर रहा। मैं हंसा, मैंने कहा पागल हो, 6 महीने से रिहर्सल कर रहा हूँ। मैंने कहा कौन कर रहा है? बोला संजीव कुमार कर रहा है। आई वाज शॉक्ड एंड आई कॉल्ड अप महेश भट्ट साहब, मेरे राशन की दुकान थी नजदीक। मैंने भट्ट साहब को फोन किया, मैंने कहा भट्ट साहब, लोग भी कैसी अफवाहें फैलाते हैं, अभी मुझे किसी ने कहा कि मैं मेन रोल नहीं कर रहा। तो भट्ट साहब बड़े कैजुअली बोले कि हाँ वो यार, वो राजश्री वालों ने डिसाइड कर लिया कि दे डोंट वांट टू मेक ए फिल्म विद अ न्यूकमर, दे आर मेकिंग द फिल्म विद संजीव कुमार, बट डोंट वरी, उसमें एक दूसरे बुड्ढे का रोल है, वो तू कर लेना। उन्होंने इतना कैजुअली बोला कि मुझे लगा दिस सिटी डज नॉट डिजर्व मी। मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं टैक्सी में डाल के मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस मुंबई शहर में रहना ही नहीं है। जब मैं रेलवे स्टेशन जा रहा था मुंबई सेंट्रल, तो मेरे को मेरे दादाजी की एक बात याद आई। वो कहते थे कि इफ यू वांट टू बी इक्वल विद एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, जस्ट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द पर्सन। तो मुझे लगा अब तो मुझे महेश भट्ट से कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं जाकर उनको बोल सकता हूँ कि उनके बारे में क्या सोचता हूँ। उनको बोल बुला के सुना सुनू के फिर मैं वापस घर जाऊंगा, अब शिमला जाऊंगा। मैंने टैक्सी वाले को बोला, मैंने कहा पाली ले लो। वो 6ठी मंजिल पे रहते थे, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, पर जब गुस्सा आता है ना तो एनर्जी मिलती है। मैं 6 मंजिल चढ़ के दरवाजा खोला, उन्होंने कहा वेरी गुड अनुपम, यू हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, यू नो संजीव कुमार इज अ बिग स्टार, तू भी है थिएटर का, तुम दोनों बहुत मैजिक क्रिएट। मैंने कहा भाई साहब 1 मिनट, मैं उनको उनकी खिड़की के पास ले गया। मैंने कहा वो नीचे टैक्सी देख रहे हैं, इसमें मेरा सामान है, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। पर जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के सबसे बड़े फ्रॉड हैं और चीट हैं। मैं रो रहा था, मैं बिलख के रो रहा था, बहुत दिल टूट गया था। मैंने कहा आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं, आपके अंदर ही सत्य नहीं है। आपने 6 महीने मैंने इस फिल्म में काम किया है और आप मुझे निकाल रहे हैं, तो आप सत्य पे फिल्म कैसे बना सकते हैं? संजीव कुमार बहुत अच्छे एक्टर है, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स, बट ये रोल मुझसे बेटर नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जिया है। तो जब आदमी को गुस्सा आता है ना, तो वो सोचता है कि अब इसकी क्लाइमैक्स की लाइन बड़ी अच्छी होनी चाहिए, तो मुझे क्लाइमैक्स की लाइन नहीं मिल रही। मैं भी कह रहा था कि मैं आपको, आप ये हैं वो हैं, और आप मैं आपने मुझे नहीं निकाल दिया, आप सत्य की बात कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ भट्ट साहब, मैं जा रहा हूँ, और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। तो मैं निकल गया, मैं टैक्सी में बैठने लगा। भट्ट साहब ने ऊपर से चिल्लाया, बोले ऊपर आ। मैंने कहा नहीं, और मैं सोचा था मेरे पाँव से कुछ चिंगारियां ऊपर गया। तो भट्ट साहब ने फिर राजश्री प्रोडक्शन में फोन लगाया और उन्होंने कहा कि जो सीन इस समय इस एक्टर ने किया है, मैं फिल्म तो उसके साथ ही बनाऊंगा। हम सिर्फ 75 साल पुराने देश हैं, हमारे पास बहुत सारी परेशानियां थी, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब करना था। I think now we have reached a stage where we are comfortable with who we are. I think now it will start happening. But yes, I totally agree with you. The power of cinema is unbelievable. And the soft power जो जैसे अमेरिकन फिल्म्स हैं, उनमें सब कुछ
बड़ा now the White House will reach there and the president is talking to so and everybody start music. But we will do it. We'll do it. I have great. I'm an eternal optimist, and we will certainly do this. But I totally agree with you that cinema has the greatest soft power for the world. एक तरफ से हम शिंडलर्स लिस्ट को ऑस्कर देते हैं और एक तरफ से यहाँ हमारे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ये हुआ ही नहीं था या ये प्रोपोगेंडा फिल्म है. उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए. शर्म से उनको अपने सर झुका लेने चाहिए, बिकॉज आज भी कश्मीर में ऐसा हो रहा है. बट एटलीस्ट नाउ देयर इज अ डॉक्यूमेंटेड, दैट्स द पावर ऑफ सिनेमा मैम.